So let's start with next question. Question number 14, which we have solved minimum 5 times, so we will not solve again. It is t by 12. Next question, question number 15th. Question number 15th. 15th. A simple pendulum is executing simple harmonic motion with a time period t. If the length of the pendulum is increased by 21%, the percentage increase in the time period of the pendulum is how much? Okay, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, बट I told you that time two methods, एक full fledged, एक trick. So here I just want to quickly tell you how to use trick again. So first of all, you should be good with numbers. पेंडुलम का लेंथ कितने से बढ़ाया? 21%. मतलब अगर पहले L1 था तो अभी L1 प्लस 21% ऑफ L1. मैंने आपको तब के तब बता दिया था कि डू नॉट राइट लाइक दिस, राइट इट लाइक 1.21 L1. खत्म. क्योंकि अगर पहले 100 सेंटीमीटर था फिर 21% से बढ़ाया तो बन जाएगा 121. राइट, करेक्ट. और परसेंटेज की जब बात करते हो 21% इज 0.21, 10% इज 0.1, 15% इज 0.15, 5% इज 0.05, 0.05 not 0.5. So if something is increasing by 21%, मतलब न्यू लेंथ इज 1.21 ऑफ इनिशियल. तो यहीं से आपको मिल गया L2 by L1 equal to 1.21. Then time period of pendulum is proportional to root of length, 2 pi root of L by G. So it is proportional to length. मतलब T2 by T1 is under root of L2 by L1, which is under root of 1.21, which is 1.1. Okay, 1.21 मतलब 121 by 100. 1.1 is 121 by 100. 121 का root is 11. 100 का root is 10. 11 by 10 is 1.1. क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये ओरली हो रहा है. आई एम राइटिंग हियर बट इट शुड हैपन ओरली इन योर ब्रेन. मतलब T2 इक्वल टू 1.1 T1. मैंने जब पूछा 0.1 का मतलब क्या, आपने बोला 10% इंक्रीज. यहाँ पे क्या आया? 1.1. मतलब क्या? 10% इंक्रीज. डन, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कल सॉल्व किया था. अ मास m attached to a spring oscillates every 2 seconds. If the mass is increased by 2 kg, the time period increases by 1. मतलब पहले टाइम पीरियड था 2 सेकेंड, अब है 3 सेकेंड, क्योंकि इंक्रीजेस बाय 1 बोला है. चेंजेस टू 1 नहीं, इंक्रीजेस बाय 1, मतलब 2 + 1 3. और मास इज इंक्रीज बाय 2 किलोग्राम. तो कल मैंने आपको बताया था कि T is proportional to root of m, 2 pi root of m by k. So T2 by T1 is under root of m2 by m1, right? तो m2 by m1, m2 पहले मास सिर्फ था m, दूसरे केस में आपने 2 kg का एक्स्ट्रा लगा दिया था 2 kg का, तो m + 2. T2 is 3, this is 2 under root of m plus 2 by m. Squaring on both sides, 9 by 4 equal to m plus 2 by m. 9m equal to 4m plus 8. 9m, 4m plus 8. 9 minus 4, 5m equal to 8. M equal to 8 by 5, which is 16 by 10. Multiply, divide by 2. So m equal to 1.6 kilogram. Option number A. Next question. All right. So as you must have seen that we are into next set here. And that means we are starting with JEE, क्योंकि यहाँ पे नीट में इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत कम बार पूछे गए हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज प्रीटी लेस वेटेज as far as नीट इज कंसर्न अभी तक.
So we'll move ahead with JEE main question 2016. A particle performs simple harmonic motion with amplitude A. So you have a particle performing SHM. मान लो ये उसका mean position है. This is extreme position. So amplitude is A. आगे बोला है its speed is trebled. Trebled मतलब tripled actually. So they want to say its speed is tripled 3 times at the instant that is at distance 2a/3 from equilibrium position. मतलब पार्टिकल जब 2a/3 डिस्टेंस पे था, मतलब पार्टिकल when it was at a distance of 2a/3 मतलब x equal to 2a/3 इतने डिस्टेंस पे था, तब इसके वेलोसिटी को कर दिया ट्रिपल. वेलोसिटी कब बढ़ता है? जब एक्सेलरेशन हो, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन. एसएचएम में तो एक्सेलरेशन है ही, क्योंकि वेलोसिटी एट मीन इज मैक्सिमम, एक्सट्रीम इज 0. वो तो है, लेकिन ट्रिपल अपने आप नहीं होगा, एक्स्ट्रा बाहर से एक्सटर्नल एक्सेलरेशन, राइट? वेलोसिटी विल चेंज इफ देयर इज एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन, एंड इफ देयर इज एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन देयर इज एक्सटर्नल फोर्स. तो क्या हुआ कि द मोमेंट you apply external force, its velocity is tripled, and its velocity is tripled also means its amplitude will change now. तो अब इसका amplitude a नहीं, a से ज्यादा होगा, right? a से ज्यादा होगा. You need to remember this. Then they are asking you what is the new amplitude, right? This question can be solved in 2 to 3 different ways. I will try to keep it as simple as possible. तो बेसिकली आइडिया इज कहां पे स्पीड ट्रिपल हुआ वो पता होना चाहिए, 2a/3. तो वी न्यू वेलोसिटी विल बी 3 times ऑफ इनिशियल, राइट? देन v का जनरल फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ a न्यू, क्योंकि यहाँ पे न्यू है, a न्यू स्क्वायर माइनस x square, x न्यू मत बोल देना, x is x, okay, equal to 3 times of omega under root of original amplitude minus x square, right? Simple. This and this will cancel out, squaring on both sides. So new amplitude square minus x square equal to, sometimes while squaring हम गलती से यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3 लिख देते हैं. 3 का स्क्वायर होगा 9, गलती से 3 लिखा तो गया, आंसर नहीं मिलेगा. ओके, तो न्यू स्पीड विल बी 3 times ऑफ इनिशियल स्पीड, एंड न्यू स्पीड इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a न्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ओरिजिनल स्पीड इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 जो था वो है. Then we have squared it. So from here you will get a new square minus x square equal to 9a square minus 9x square. इसको शिफ्ट कर दोगे तो therefore a new, क्योंकि आपको न्यू एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो न्यू एम्पलीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब माइनस 8x स्क्वायर. वेरी गुड. आपको x की वैल्यू दी है, तो यू विल पुट वैल्यू ऑफ x. सो देयरफॉर a न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 9a स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर. 8x स्क्वायर, बट व्हाट इज x? 8 into 2a/3 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 8 और ये 4 है ना, 32. ये 2 स्क्वायर 4 8 जा 32/9, 9 और a स्क्वायर. 9 into 9 is 81 a square minus 32 a square by 9. So ultimately what you will get is, therefore a new square is 49a square by 9. So new amplitude will be obtained by taking square root 7a/3. Option number 6. Next question.
Two simple harmonic motions are represented by equations y1 equal to 0.1 sine of 100 pi t plus pi by 3 and y2 equal to 0.1 cos of pi t. The phase difference of the velocity is important. Two, three things are important here. Phase difference of the velocity. Displacement का नहीं, velocity का. Of particle 1 with respect to velocity of particle 2. तो सबसे पहले here you need to remember कि आपके पास जो दो इक्वेशन है y1 equal to what was y1 equal to 0.1 sine of 100 pi t plus pi by 3 plus pi by 3 इसको आप डायरेक्टली दूसरे इक्वेशन से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है. आपको बोला है फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटीज. तो पहले आप वेलोसिटी फाइंड करो. वेलोसिटी इज dvy1 by dt, राइट? तो dvy1 by dt पहले फाइंड करना पड़ेगा एंड आई होप यू नो व्हाट इज दिस. इजी. 0.1 कांस्टेंट आउटसाइड. साइन का डेरिवेटिव आता है cos of 100 pi t plus pi by 3. इसमें जो ये 100 पाई है ये 100 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos और मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल. डेरिवेटिव ऑफ द एंगल मतलब डेरिवेटिव ऑफ 100 पाई t प्लस पाई बाय 3. 100 पाई t का डेरिवेटिव आएगा 100 पाई dt by dt will be 1 और पाई बाय 3 कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो ये आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1. Velocity of particle 2 v2 will be dy2 by dt. If you remember, this was 0.1 cos of pi t. So derivative of cos of pi t 0.1 cos of pi t. Okay, तो ये आएगा आपके पास. If you do this, this is cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ पाई टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ पाई टी इज पाई और ऑलरेडी 0.1 था. तो आपके पास सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी है 0.1 पाई साइन ऑफ पाई टी. नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? एक में कॉस है, एक में साइन है. नंबर 2, यहाँ पे प्लस है, वहां पे माइनस है. तो कंपैरिजन करोगे तब फेजेस मिलेंगे और तब फेज डिफरेंस मिलेगा, राइट? तो कंपैरिजन करने के लिए दो तरीके हैं. हम या तो इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करो या तो इस साइन को कॉस में करो. इट इज गुड दैट यू कन्वर्ट दिस साइन इनटू कॉस बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव को भी हम एब्जॉर्ब कर लेंगे. And you should know cos of pi by 2 minus theta ये होता है sin theta plus sin theta क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट. cos of pi by 2 minus the moment you see pi by 2 और cos तो sin. लेकिन cos of pi by 2 minus theta मतलब एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं इसलिए पॉजिटिव. हमारे पास नेगेटिव है मतलब I will put a positive here and it will become negative. So cos of pi by 2 plus theta is minus sin theta because second quadrant में cos होता है नेगेटिव. तो आपके पास यहाँ पे थीटा की जगह पे है पाई टी, तो यहाँ पे भी आप थीटा की जगह पे लिखोगे पाई टी और ये सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे. तो you will get v2 equal to what? v2 equal to 0.1 pi cos of मैं लिख देता हूँ पाई टी प्लस पाई बाई 2. तो इफ यू सी ये पहले वेलोसिटी का फेज है phi1, ये दूसरे वेलोसिटी का फेज है phi2 और आपको बोला है फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 मतलब phi1 माइनस phi2. अगर आपको बोला होता फेज डिफरेंस ऑफ
2 with respect to 1, तो phi 2 minus phi 1. Phi 1 is pi by 3. This is pi by 2 माइनस के साथ, और ज्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में मत पड़ना. 60 minus 90 minus 30 मतलब माइनस पाई बाय 6. अगर गलती से आपने उल्टा लिख दिया होता तो प्लस पाई बाय 6. तो देखो दोनों ही ऑप्शन है, अब पाई बाय 6 भी है और माइनस पाई बाय 6 भी है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस पाई बाय 6. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, two particles are executing simple harmonic motion of same amplitude A and frequency omega along the x-axis. Their mean position is separated by x0, where x0 is greater than A. If the maximum separation between them is x0 plus A, the phase difference between their motion is. So if you remember, I have given you this as an assignment. So you will get 24 hours minimum to solve this, and then we will come back to this question. Next question. A particle executing simple harmonic motion of amplitude 5 centimeter. आपके पास एक particle है which is executing SHM with amplitude 5. Has a maximum speed of, मतलब Vmax of 31.4 centimeter per second. What is the frequency? Very simple. Frequency find करना है तो Vmax का इक्वेशन बताना चाहिए A ओमेगा. फिर आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा is 2 pi times of frequency. मतलब Vmax upon 2 pi A. Vmax upon 2 pi A is nothing but frequency. Good. तो Vmax की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 31.4 अपॉन 2 पाई ए कितना है 5. मैंने दोनों को ही कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में था, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. 5 into 2 is 10. ओके, तो यू शुड नो 31.4 और 10 पाई दोनों सेम वैल्यूज हैं, क्योंकि पाई 3.14 into 10 मतलब 31.4. ऊपर 31.4, नीचे 31.4 मतलब 1 हर्ट्ज. 1 हर्ट्ज मतलब ऑप्शन नंबर डी. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द xt ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ of a particle undergoing simple harmonic motion is shown below. The acceleration of the particle at t equal to 4/3 second is. तो थोड़ा क्वेश्चन कट हो गया, don't worry. So you have a position time graph of a particle which is performing SHM. Acceleration at 4/3 second is. So to solve this question, it is very, very simple. Extremely simple. Acceleration. What is acceleration? A equal to minus omega square x. Right, good. Then, अगर आपको A फाइंड करना है तो आपको x पता होना चाहिए क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, और आपको x पता करना है तो ग्राफ पे देखो साइन वेव. साइन वेव मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन. अगर कोसाइन होता तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम. सो व्हेन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. फिर आप बोलोगे एम्पलीट्यूड कहां गया, तो एम्पलीट्यूड 1 है. ग्राफ में दिख रहा है यहाँ पे A इक्वल टू मैक्सिमम इज 1 मतलब एम्पलीट्यूड इज 1. हाँ, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो एम्पलीट्यूड इज 1. तो A इक्वल टू ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड साइन ऑफ ओमेगा मतलब 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू स्मॉल t. राइट, करेक्ट. ओके, सो दिस इज व्हाट यू विल हैव. स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर.
नेक्स्ट थिंग इज, आपको अगर टाइम पीरियड मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाइम पीरियड मतलब वन ऑसिलेशन, और वन ऑसिलेशन मतलब वन साइन वेव। कितने टाइम के बाद? 8 सेकेंड्स के बाद। तो ग्राफ से आपको यह पता लग रहा है कि यहां से यहां तक का जो टाइम होता है टाइम पीरियड, और ग्राफ से आपको पता लग गया कि टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड्स। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाय 8 स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाय 8, और ये दिया है 4/3, राइट? 4/3, ओके। 1 and 4, 4 and 4 कैंसल, ये आ गया 1 and 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 साइन ऑफ पाई बाय 3 मतलब साइन ऑफ 60 रूट 3/2 मतलब ये आ जाएगा माइनस रूट 3 पाई स्क्वायर बाय 32 माइनस रूट 3 पाई स्क्वायर बाय 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। If x, v and a denote displacement, velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion of time period t, then which of the following does not change with time? तो ये चार क्वांटिटीज में से, चार ऑप्शन में से कौन सा क्वांटिटी है which does not change with time? Okay, x, v and a are displacement, velocity and acceleration, right? First of all you should know, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर दिया है, तो जो भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, जैसे यहाँ पे a, t और v, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि a, t और v में से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है, राइट? सेकंड ऑप्शन में a, t and x, which one is variable, which one is constant, right? अब आपको ऑलरेडी पता है SHM में, क्योंकि बोला है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, मतलब a बाय x इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। SHM में ओमेगा होता है कांस्टेंट, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर भी हो गया कांस्टेंट, मतलब a बाय x आ गया कांस्टेंट। और अगर ओमेगा कांस्टेंट होता है तो टाइम पीरियड भी तो कांस्टेंट होता है, तो टाइम तो वैसे भी कांस्टेंट है टाइम पीरियड, इसका मतलब आल्सो यू कैन से टाइम पीरियड t इज कांस्टेंट। इसका मतलब a बाय x जो कांस्टेंट है, t जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। फिर आप बोलोगे बाकी क्यों नहीं? लुक, a और t, a इज नॉट कांस्टेंट, सिर्फ a कांस्टेंट नहीं, a बाय x कांस्टेंट है, तो पहली टर्म कांस्टेंट नहीं है, v भी कांस्टेंट नहीं है। कैसे पता? क्योंकि x, a और v, x, v और a ये साइन कोसाइन साइन, x इक्वल टू a साइन तो v इक्वल टू कोसाइन, एंड a इक्वल टू वापस से साइन, तो a और v और x वेरिएबल है, तो पहले टर्म में a वेरिएबल है, a स्क्वायर वेरिएबल हो गया, t कांस्टेंट लेकिन पहला ही वेरिएबल। नीचे वापस से वही स्टोरी, t constant but a is variable. Here a variable and v variable, but in option number B a and x are variable but a by x is constant. ऐसा क्यों हुआ? Think, a और v, do you remember अगर a में साइन है तो v में कोसाइन होता है, तो a by v करोगे तो साइन अपॉन कोसाइन tan बन जाएगा, लेकिन a में और x में दोनों में साइन और साइन, तो हो जाएगा कैंसल। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी। सो दैट्स इट फॉर टुडे।